بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ والد صاحب نے عمر بھر بڑی محنت سے کمایا اور مسلسل کوشش سے دولت مند ہو گئے۔ چونکہ رزق کے حلال کی کمائی سے اچھے دن آئے تھے، لہٰذا ان کو پیسوں کی قدر تھی۔ ساتھ ہی وہ ہر دم ذکر الہی کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ یہ دن ایسے ہی رہیں، برے دنوں میں نہ بدل جائیں۔ والد صاحب غریبوں کے بڑے ہمدرد تھے، ہر دم سوالیوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، لہٰذا بیٹی کی شادی انہوں نے ایک غریب گھرانے میں کرا دی۔ سوچا کہ غریب گھرانے کی لڑکی آئے گی تو ہم لوگوں کو اہمیت دے گی اور ہماری قدر کرے گی۔ لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بھابھی شروع میں صحیح رہی، امی ابو کا خیال رکھتی تھی، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھی۔ ربیہ بھابھی کو ہمارے ہاں بہت سکھ ملا، نوکر چاکر، مال دولت، آرام و آسائش، قرض کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ہماری قدر کرتی تو ہم بھی حسن سلوک سے کام لیتے۔ بھابھی کی والدہ آتی تو ہم ان کو بہت عزت دیتے تھے۔ امیری غریبی کا فرق تو والد صاحب نے دلوں میں ڈالا ہی نہ تھا، کیونکہ ہم لوگ خود پہلے برے حالات دیکھ چکے تھے۔ ایک روز بھابھی نے والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ نازیہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ذکر کرتی چلوں، ہم دو بہنیں تھیں، مجھ سے بڑی کا نام نازیہ تھا۔ میری والدہ نے انکار کر دیا کہ وٹے سٹے کا معاملہ ہو جائے گا، کہیں رشتوں کا پیار نفرت میں نہ بدل جائے۔ اس انکار کو انہوں نے قبول نہ کیا، مسلسل اصرار کرتی رہی۔ بھابھی کے والدین کی منت سماجت اتنی بڑھی کہ والدین کو ہاں کہتے ہی بنی، کیونکہ وہ بہو کو اعتماد دینا چاہتے تھے۔ میری بہن نازیہ خوبصورت مگر بھولی بھالی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر 16 برس تھی اور میری 15 برس تھی۔ ابو جان نے کہا، بہو غریب گھر سے لی ہے تو اس گھرانے میں بیٹی بہانے میں کیا حرج ہے۔ نازیہ کی شادی بھابھی کے بھائی حارث سے ہو گئی۔ والد صاحب نے جہیز اور سلامی کے نام پر داماد کو کافی نقد رقم بھی اسی خیال سے دی کہ اگر چاہیں تو کاروبار کر لیں اور میری بیٹی سکھی زندگی بسر کر سکے۔ نازیہ باجی صرف 1 ماہ سکون سے رہی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سارے گھر کا کام اس کے سپرد کر دیا۔ کہنے لگے، ہمارا رواج ہے کہ بہو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اور گھر کی مالکہ کو گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس روز کے بعد سے میری بہن کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ ساس ہر ایک سے یہی کہتی کہ دیکھو میری بہو کتنی سلیقہ مند ہے، خود بخود سارا کام کرتی ہے، گھر کو چمکا کر رکھتی ہے، ایسی لڑکیوں کو تو سونے میں تولنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ میری بھولی بہن ان تعریفوں پر خوش ہوتی اور زیادہ کام کرتی۔ اس کو یہ نہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ اس کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ نازیہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سہتی رہی۔ ساس نندے کمروں میں لیٹی آرام کرتی رہتی۔ گھر کے مالی حالات بھی درست نہ تھے۔ نازیہ کے میاں نے اس رقم سے جو والد صاحب نے سلامی کے طور پر دی تھی، ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ شوہر کے جاتے ہی نازیہ کے سسرال والوں نے میری بہن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کو کھانے میں چائے کے ساتھ روٹی اور کبھی چٹنی دیتے۔ ساس کہتی، بس بیٹی تھوڑے دنوں کی بات ہے، تمہارا شوہر دبئی کمانے گیا ہوا ہے، جو ہی وہ رقم بھجوانے لگے گا ہم تمہیں عیش کرا دیں گے، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، گھر کی باتیں میں کے جا کر مت کہنا۔ اچھی بیٹیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، دکھ سکھ سہ لیتی ہیں مگر سسرال کا گلہ نہیں کرتی۔ میری بہن بیچاری کم سن تھی، ساس کی چاپلوسی میں وہی کرتی جو وہ کہتی۔ اس طرح پورا کھانا نہ ملنے سے اس کی صحت گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی۔ ایک روز ہماری ایک رشتہ دار عورت جو ان کی پڑوسن ہے وہاں گئی تو دیکھا کہ نازیہ پیٹ پکڑے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ خالہ بانو نے سوال کیا، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ خالہ جی مجھے بہت تکلیف ہے، یہ لوگ کھانے کو روز مرچوں کی چٹنی دیتے ہیں، معدے میں زخم ہو گئے ہیں، جلن اور درد رہتا ہے، تم اپنے میکے کیوں نہیں جاتی؟ یہ لے کر ہی نہیں جاتے؟ خالہ جی خود جا کر بیٹی سے مل کر آ جاتی ہیں، خود اچھے کھاتے ہیں، اچھی چیزیں تالے میں رکھتے ہیں، پھر یہ لوگ بہو سے چھپ کر فروٹ میوہ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔
पड़ोसन खाला ने जो ये हाल नाजिया का देखा, इनको बहुत दुख हुआ। इन्होंने आकर अम्मी को कहा कि कुछ तो अपनी बेटी की खबर लो, वो किस हाल में है। ना खुद जाते हो और ना वो आती है, ऐसे तो बेटियों के रिश्ते नहीं करते। तब जाकर अम्मी को होश आया और वो नासिया को देखने के लिए गईं। बाजी नासिया की सास फिर चापलूसी से काम ले गई और अम्मी जान को ठंडी मीठी बातें करके ठंडा कर दिया, लेकिन नासिया को मैके फिर भी ना भेजा। मज़े की बात ये कि हमारी भाभी भी मैके जाने का नाम नहीं लेती थी कि ससुराल में काफ़ी ऐशो आराम मिला हुआ था। उधर नासिया बाजी उम्मीद से थी। सास कहती थी इसी वजह से कुछ खाती नहीं तो हड्डियों का ढांचा हो गई है। मेरी बहन कहती बन गई थी, वो इसको घर से कदम नहीं निकालने देते थे। अभी हारिस भाई को दुबई गए 4 माह हो गए थे कि बाजी ने एक बेटे को जन्म दिया। तब ये इत्तला इनको मिली तो वो खुशी में छुट्टी लेकर आ गए। छुट्टी बहुत कम थी, 1 हफ्ता बमुश्किल रहकर वो वापस चले गए। सास के डर से बाजी ने शोहर को भी ना बताया कि तुम्हारे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। नाजिया बाजी ने बेटे को ससुराल में जन्म दिया। सास ने कहा ये हमारा रवाज है कि बहू पहला बच्चा अपने घर में जन्म देगी। अम्मी ने झगड़ा ना किया, चंद दिन बाजी के साथ रहकर वापस लौट आईं। अम्मी के जाते ही नासिया की सास नंदों की फिर बन आई। इन्होंने मेरी बहन से इसका कमरा खाली करा लिया कि तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या हाजत है, हम तुम्हें छोटा कमरा दे देते हैं। ये छोटा कमरा सहन के एक कोने में बना हुआ था। पहले ये स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसे साफ करा कर वहाँ मेरी बहन का सामान सजा दिया गया। कमरे के ऊपर घना पीपल का दरख्त था। इनका कहना था तुम्हारा बच्चा छोटा है, ये रात भर रोता है तो घर भर की नींद खराब होती है, इसलिए तुम घर से कुछ फासले पर रहोगी तो सब सुकून की नींद सो सकेंगे। कुछ दिन बाद इन्होंने ये मशहूर कर दिया कि पीपल के इस दरख्त पर आसेब का साया है। नासिया कभी अकेली न सोती थी, वो शुरू से डरती थी। पहले अम्मी फिर मैं इसके साथ बेडरूम में सोया करती थी। शादी के बाद इसे अकेला सोना पड़ा। रात को ये लोग घर की तमाम बत्तियां गुल कर दिया करते थे। आधी रात को देवर शरारत करता, वो सहन में अजीब तरह की आवाज़ें निकालता जिस पर नासिया की आंख खुल जाती और वो खौफजदा हो जाती। खुदा जाने ये लोग ऐसा क्यों करते थे, मगर मेरी बहन डर डर कर मरने लगी। कम सनी में बच्चा संभालने का भी उसको तजर्बा ना था। नतीजा ये हुआ कि बेख्वाबी ने इसको नीम पागल कर दिया। अब वो आधी रात को कमरे से निकलकर सहन में आ जाती, हर किसी का दर खटखटाती कि खोलो, मुझे डर लग रहा है, लगता है घर में आसेब है जो मुझे डराते हैं। दरख्त पर दिए जलते हैं, दरख्त पर रोशनी ये लोग खुद जलाते थे। ऐसी बातें सुनकर ससुराल वाले कहते कि इस पर असर हो गया है या फिर ये जहनी मर्ज में मुब्तला हो गई है, पागल हो गई है, जबकि इसको जहनी मरीज और नीम पागल भी इन्हीं लोगों के सलूक ने बना दिया था। नासिया के मुंह पर हर आने जाने वाली औरत और रिश्तेदारों से यही तस्करा करते कि बदकिस्मती से हमारी बहू पर आसेब है। बच्चे का कोई ख्याल न करता। नासिया बच्चे को दिल से लगाकर घर में इधर उधर मुस्तरिब फिरती। इस एस्तराब की वजह कोई न देखता, लेकिन हर कोई इसे पागल कहता। इसी आलम में बच्चा भी ठीक तरह से ना संभलता, घबरा कर रोए जाता। शायद भाभी के घर वाले ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। वो सूरत हाल को रोज़ बरोज़ मज़ीद कुछ इस तरह ख़राब कर रहे थे कि नासिया खुद हथियार डाल दे। नासिया को दहशत ज़दा करके इन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। मेरी बहन रात को अपने कमरे में कदम न धरती, सहन में रात गुजार देती और कहती वहाँ कोई बदरू है जो मुझे डराती है, मैं कमरे में अकेली नहीं सोऊंगी, कोई मेरा गला घोंट देगा। मेरी बहन को रात के वक्त डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब वो इस बात का तस्करा सास नंदों से करती तो ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते और इसकी इस कैफियत से महसूस होते। गर्ज इन लोगों ने इसको डरा डरा कर ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। अब नासिया सारे मोहल्ले में नीम पागल और आसेब ज़दा मशहूर हो गई। औरतें चौक दर चौक इसको देखने आने लगी। ये और ज़्यादा असियत से दो चार रहने लगी। जब औरतें नासिया के मुंह पर एक दूसरे से कहती कि ये नफसाती मरीज़ा है, पागल है, इस पर जिन्नों का साया है, तो वो और ज़्यादा चीख चीख कर रोती। औरतों से कहती क्यों आई हो मुझे देखने, क्या मैं तमाशे की चीज़ हूँ, निकलो निकलो यहाँ से। ये रवैया नासिया का कुदरती था। अच्छे भले इंसान को कोई बार बार पागल कहे, सताए छेड़े तो इसका दिमाग भी उलट जाता है और वो सताने वालों के पीछे दौड़ने लगता है। मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया
बेचारी आपकी बहू, इसका रूहानी इलाज कराओ, इसको आलिमों को दिखाओ ताकि साया जिन जो भी है इस पर से हट जाए। जिन को नाज़िया के अंदर से निकालने का एक ही तरीका है कि इस पर किसी बुज़ुर्ग आलिम से अमलियात कराए जाएं। इस शख्स को आलिम कहकर ये पकड़ कर लाए और इसने नाज़िया पर अमल शुरू कर दिया। कभी कमरे में बंद करते, कभी मारते, कभी मिर्चों की धुनी देकर जिन भगाते। गर्ज अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल करने से मेरी बहन शदीद बीमार हो गई और इसको दौरे पड़ने लगे। अम्मी को किसी ने खबर की, वो बेटी को लेने गईं तो सास ने कहा, हम अपने बेटे की इजाज़त के बगैर बहू को कहीं नहीं भेजेंगे। अगर आपके वहाँ इसको कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे? हम हारिस को इत्तला करते हैं। अगर इसने कह दिया कि मेरी बीवी और बेटे को मैके भिजवा दो तो आप आकर इसे ले जाना। अभी इलाज चल रहा है, अमल मुकम्मल होने दें, वरना अमल उल्टा भी हो सकता है, तब हम सब हलाक हो जाएंगे। ये अजीब बातें थी। मेरी माँ बेचारी दंग रह गई, परेशान वापस लौटी। बहू से कहा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ, इस तरह तो कोई नहीं करता। हमारी लड़की अच्छी भली थी जब ब्याही गई थी और अब इसकी हालत बहुत ख़राब है। हमारी भाभी ने उल्टा अम्मी को कहा, आप गलत सोच रही हैं। मेरे घर वाले अपनी बहू और पोते के खैर ख्वाह हैं, एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग से अमल करा रहे हैं। अगर दरमियान में अमल तोड़ा गया तो सभी हलाकत में पड़ जाएंगे। आप अभी मर्दों को मत कुछ कहें, ऐसा ना हो कुछ बड़ा नुकसान या झगड़ा हो जाए। हम लोग सीधे सादे ऐसी चालबाजों से वाकिफ़ न थे। ये सिलसिला इलाज चलता रहा। एक तरफ और दूसरी तरफ इसे रात को डरा डरा कर अदमुआ करते रहे। जब बाजी की हालत बहुत ख़राब हो गई तो एक दिन सास आकर इसे हमारे हवाले कर गई। अम्मी अब्बू नाज़िया को लेकर लाहौर चले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इसको ज़हनी अमराज के अस्पताल में दाखिल कराने का मशवरा दिया। वहाँ पर भी वो दहशत ज़दा सी रही। आखिर इसी आलम में इसका इंतकाल हो गया। जब नाज़िया इस दुनिया से चली गई, हारिस आया, मगर अब क्या फ़ायदा था। वो 2-4 दिन सोगवारी के गुजार कर वापस दुबई चला गया। अम्मी ने नाज़िया का बेटा लेने की कोशिश की, लेकिन भाभी की वालदा ने हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया और अपने पास रख लिया। हम लोग अभी तक गुम में थे कि आखिर हमारी बहन के साथ क्या हुआ। बज़ाहिर ये लोग इतने अच्छे और मीठे थे, मगर इनको बुरा नहीं कह सकते थे। एक रोज़ भाभी के वालिदैन के घर से इनकी मुलाज़मा आई। इसने आकर बताया कि आप लोगों की लड़की पर बड़ी होशियारी से इन्होंने जुल्म किया है कि किसी को पता भी न चले और लड़की भी इस दुनिया से चली जाए। अम्मा नूरा ने कहा, ये बहुत चालबाज लोग हैं, इन्होंने बड़ी मंसूबा बंदी करके नाज़िया को मारा है। किस्सा ये था कि जब हारिस दुबई गया और वहाँ कमाने लगे तो इन्होंने चाहा कि आधी कमाई वालिदैन को दें और आधी बीवी के नाम जमा कराते रहें, मगर नाज़िया की सास ये ना चाहती थी। वो सारी कमाई की खुद मालिक होना चाहती थी। नाज़िया को तलाक भी कैसे कराती, इसकी बेटी भी हमारे घर ऐशो आराम कर रही थी। ये बात गैर यकीनी लगती थी, लेकिन दुनिया में क्या कुछ नहीं होता, ख़ास तौर पर इन बीवियों के साथ जिनके शोहर दियारे खैर में कमाने चले जाते हैं और रिश्तेदार इनकी सारी कमाई समेटना चाहते हैं। नौकरानी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अम्मी ना मानती थी कि महज बेटे की कमाई की खातिर इन लोगों ने ऐसे किया होगा। अभी नाज़िया का दुख हरा था कि भाभी की माँ एक बार फिर बेटे के लिए झोली फैलाकर आ गई। अब के वो अपने पोते की खातिर हारिस के लिए मेरा हाथ मांगने आई थी। अब तो अम्मी का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो बोली, मेरी एक बेटी आपके घर की बहू बनी तो वो कब्र में चली गई, अब आप दूसरी का हाथ मांगने आई हैं। ये नहीं हो सकता। आज के बाद दोबारा ये बात मत कहना। पहले तो मेरे घर वाले इनकार करते रहे, आखिरकार इन्होंने बरादरी की मिन्नतें करके इनको बीच में डालकर अपनी बात मनवा ली। जाने क्या जादू था भाभी की वालदा की बातों में कि कोई ज़्यादा देर इनसे मुखालफत नहीं कर सकता था। नाज़िया बाजी की बेटी की वजह बताकर इन्होंने हमको ट्रैप कर लिया। यूँ मेरी शादी हारिस से कर दी गई। इस मामले को सुलझाने में हमारी चालाक भाभी पेश थी। ये एक रिस्क था जो मेरी वालदा ने लिया था। एक बार फिर अल्लाह पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मेरा भाई कुली तौर पर अपनी बीवी के कब्जे में था। वो इसकी हर बात मानता। इन लोगों ने वही तरीका रवा रखा जो मेरी बहन के साथ रखा था। मुझे वही कमरा दे दिया जो मेरी बहन को दिया था। हारिस वापस दुबई चले गए तो वैसे ही सारे घर की बत्तियां गुल करके मुझे डराने लगे, लेकिन मैं इतनी सीधी ना थी जैसे नाज़िया थी, ना ही मैं डरपोक थी। मैं इन हालात के लिए पहले से तैयार थी।
पहले दिन मैंने अपने छोटे देवर को पकड़ लिया, खूब डांटा, खबरदार जो रात को सहन में अंधेरा किया या तुमने किसी किस्म की आवाज़ निकाली मैं जान निकाल लूँगी तुम्हारी। अब जब वो ऐसी कोई शरारत करता मैं डरने के बजाय डंडा उठा लेती। वो मास्क से चेहरा ढांप कर भूत बनता और मैं इसको जलील करके रख देती। मैंने सारा अहवाल शोहर को लिख भेजा। इसके बाद माजिद सारी शरारतें भूल गया क्योंकि इसके भाई ने दुबई से फ़ोन पर इसे काफ़ी डांटा डपटा और कहा आकर तुम्हारी ऐसी खबर लूँगा कि तुम सारी शरारतें भूल जाओगे। यही नहीं, हारिस ने अपनी वालदा को भी कहा कि अगर समीना के साथ ऐसा मजाक हुआ तो याद रखना आपकी बेटी भी घर आ जाएगी। ये धमकी कारगर साबित हुई। साल बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटे से नवाज दिया। मैं अपनी बहन के बेटे को भी जान से ज़्यादा अजीज़ रखती थी। मैंने पहला बेटा वालदा के घर जाकर जन्म दिया और सास के पास रहने से इनकार कर दिया। इस पर दुबई से मुझे हारिस ने लिखा कि क्या बात है, तुम मेरी वालदा का कहना नहीं मानती हो, क्या बहुत आज़ाद हो गई हो, जबकि मेरी बहन तो ससुराल से एक रात भी मैके नहीं आती है। ऐसा कोई हमारा मुआहदा नहीं हुआ था कि वो मैके ना जाती। वो तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती थी क्योंकि वहाँ इसको सुख था और मैके में नौकर चाकर नहीं थे, खुद सारा काम करना पड़ता था। हारिस का फिर फ़ोन आ गया, कब से मैके में टिकी हुई हो, आखिर पता तो चले कहाँ कहाँ जाती हो। मैं हैरान रह जाती। अभी तो मेरा चिल्ला भी पूरा ना हुआ था। भला 1-1.5 माह की जच्चा क्या सैर सपाटे करेगी, जबकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था। अलबत्ता एक दफ़ा बच्चा बीमार हुआ तो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गई। खुदा जाने हमारी भाभी अपनी वालदा से क्या कहती थी और वो क्या कुछ अपने बेटे को लिख कर भेजती थी। इस बार जब वो दुबई से आए मैंने साफ कह दिया, मुझे रखना है तो अपने साथ रखो, वरना मैं तुम्हारी वालदा के साथ रहने को तैयार नहीं हूँ। मैं नाजिया नहीं हूँ जो एक बेज़ुबान गाय बनकर रही थी। मैं समीना हूँ, किसी ज़्यादती को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस पर हारिस ने अजब बात कह दी। बोले, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता, तुमने रहना है तो इनके साथ रहो वरना अपने मैके चली जाओ। इन्होंने नन्ना मुन्ना बेटा रख लिया और मैं मैके चली आई। दोनों बच्चों की याद मुझे तड़पाती और रुलाती थी। बिन चले मछली की मानित में तड़पती थी। उधर भाभी खामोश तमाशाई बनी हुई थी, बड़ी धीमी आवाज़ में मजलूम बनकर कहती थी, इस सारे मामले में भला मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपने घर में बस रही हूँ, किसी से झगड़ा तनाज़ा भी नहीं करती। खुदारा मुझे इन मामलात में मत घसीटो, मेरे बच्चों पर रहम करो। मेरी देवरानी ने हारिस को तसल्ली दी, घबराओ नहीं, ये चाहती है तो चली जाए। मैं तुम्हारी शादी अपनी खूबसूरत कज़न से करा दूंगी। तुम देखना किस कदर वो हसीन है, बच्चे हम पाल लेंगे। इनसे कोई पूछता अगर ऐसा ही था तो पहले क्यों ना हारिस की शादी अपनी कज़न से करा दी। अब ख्याल आ रहा है जब मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। हमारी पड़ोसन की खाला बानो को सुनगुन मिल गई कि ये लोग हारिस की शादी करा रहे हैं। वो थोड़ी आई और बताया, समीना तुम्हारे ससुराल वाले हारिस की तीसरी शादी करवा रहे हैं, जल्दी कुछ तदबीर करो, ऐसा ना हो कि ये वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जो ही मैंने सुना मैं सियालकोट आ गई और ज़िला नासिम को दरख्वास्त दी कि ये लोग ऐसा जुल्म कर रहे हैं, इनको रोकिए। नासिम साहब अच्छे आदमी थे, वो फ़ौरन वाले साहब के पास आए, फिर कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को लेकर हमारे ससुराल चले गए ताकि बातचीत करें। ये बाअसर लोग थे। इनके आने से ससुराल वालों के होश उड़ गए क्योंकि ये मेरी बहन को तो पागल बनाकर मार ही चुके थे। इसके यतीम बच्चे की खातिर मैं कुर्बानी का बकरा बनी थी। बस इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़ौरन हमसे राज़ीनामा कर लिया। हारिस आए और मुझे मना कर ले गए। मैंने शर्त रखी कि मैं अलहदा घर में रहूँगी। इन्होंने ये शर्त भी मान ली। यूँ हम अलग मकान में रहने लगे और हमारा उजड़ा घर फिर से आबाद हो गया। सास ने काफ़ी वावेला किया, मोहल्ले के हर घर में जाकर फरियाद की कि ये जालिम बहू मुझसे मेरा बेटा छीन कर ले गई है। बुढ़ापे का आसरा था, इसने हमसे जुदा कर दिया। सब ने सुना और चुप हो रहे। भला वो क्या कर सकते थे? खुदा खुदा करके सुकून नसीब हुआ। इस सारे झगड़े में भाई और भाभी तमाशाई बने रहे और इन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। मेरे भाई को तो अपना घर अजीज था। वो मेरी भाभी की आंखों से आंसू देखते और इन्हीं के कानों से वो सुनते थे। हारिस ने दुबई की मुलाजमत छोड़ दी। सोचा कि अपने वतन में थोड़ी सही लेकिन सुकून तो मिलेगा, बीवी बच्चे भी पास रहेंगे।
انہوں نے معمولی سی دکان کر لی۔ رفتہ رفتہ کاروبار میں ترقی اور برکت ہوتی گئی اور پھر ہم بھی دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ بچوں کو سکون ملا تو پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو گئے اور اچھی پوزیشن لانے لگے۔ وہ دن بھی آ گیا جب ایک بیٹا میرا ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر بن گیا۔ جب دیکھا اس کے بچے لائق نکل آئے ہیں تو نند دیورانی سبھی نے ان کو نظروں میں رکھ لیا اور اپنی لڑکیوں کے رشتوں کی باتیں کرنے لگی۔ میں ان سے حسن سلوک رکھتی مگر رشتہ لینے سے جی گھبراتا تھا۔ ساس نے حارث کو بہت مجبور کیا کہ اپنے گھر کی لڑکیاں ہیں، ان کو باہر نہ دوں گی، انہی میں سے رشتہ لو۔ مگر میں ٹالتی رہی کہ بچے برسر روزگار ہوں گے تو رشتوں کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھ لیا۔ دونوں لڑکے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، وہاں تعلیم کے ساتھ ملازمت بھی کرتے تھے۔ پھر انہیں وہاں کی رہائش مل گئی اور مستقل سکونت کی خاطر انہوں نے یورپی نیشنل لڑکیوں سے شادی کر لی۔ کیوں وہ ہم سے اور ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس خبر سے جہاں خوشی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ جن پودوں کو برسوں سینچ کر پروان چڑھایا تھا وہ جب گھنی چھاؤں دینے کے قابل ہوئے تو ہم سے دور ہو گئے۔ ہم کو سکھ دینے کا وقت تو اب آیا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا میں ان کی شادیاں نندوں یا دیور کی بیٹیوں سے کرا دیتی، کم از کم آنکھوں کے سامنے تو رہتے۔ ساری عمر سسرال کے ظلم سہے، جب خوشی دیکھنے کا وقت آیا بچوں نے اپنی سی کر لی اور ہم والدین ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے۔ لیکن خدا کی کرنی کہ یہ شادیاں انہوں نے صرف اور صرف نیشنلٹی کی خاطر کی تھی۔ ان لڑکیوں سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ جیسے ہی انہیں نیشنلٹی مل گئی وہ لڑکیاں میرے بیٹوں کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ پاکستان واپس آ گئے۔ دونوں نے اپنے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب کی بار میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں خاندان سے باہر کی۔ میں دوبارہ اس جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی کہ دیور اور نندوں کے دوبارہ میں منہ لگوں۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میرے بچے اپنی بیویوں کو لے کر دوبارہ بیرون ملک پرواز کر گئے، لیکن جانے کے 2 ماہ بعد ہی مجھے اور اپنے والد صاحب کو انہوں نے ادھر بلا لیا۔ یوں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے بہت نیک بہوؤں سے نوازا ہے۔ گھر ہر دم میرے پوتے پوتیوں کی چہکاروں سے گونجتا ہے۔ میں ہر دم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور حارث بھی بہت خوش ہے۔ آخر کار اتنی تکلیفوں کے بعد رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا میٹھا ثمر دیا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔